لمس جنون رائٹر ہے زویا علیشہ ایپیسوڈ نمبر 16 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ سب کو پسند آ رہا ہوگا۔ میرا رومان شاہ کے اتنے غیر رویے کے باوجود شاہ کے لیے پریشان ہو رہے تھے کہ شاہ پتہ نہیں کہاں ہے، کب سے نکلے ہیں۔ وہ شاہ کو ڈھونڈتے ہوئے چھت پر آئے تھے، مگر چھت سے آتی ہوئی مدھم آوازوں کو سن کر وہیں پر رک گئے تھے، اور سامنے جو منظر اس نے دیکھا تھا اس سے اس کا سر چکر آنے لگا تھا۔ اور وہ جو الفاظ مہک بول رہی تھی وہ سن کر تم میرب کو لگا کہ اس کے کانوں میں کوئی پگھلا ہوا سیسا اونڈیل رہا ہے۔ میرب کے دل سے سسکیاں نکلی تھی، اس کا دل ٹوٹا تھا۔ دل ٹوٹنے کی آواز سسکی بن کر اس کے منہ سے نکلنے ہی والی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دل ٹوٹنے والی سسکی کا دم توڑ دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر گلے میں آنسو اتار گئی۔ جھانکتے ہوئے اس نے دیکھا تھا وہ کیسے شاہ کے سینے سے لکی ہوئی کھڑی تھی، اور شاہ بھی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ میرب کا دل ٹوٹ گیا۔ رومان شاہ کے لیے اس کے دل میں نفرت سی آ گئی تھی، جو میرب کبھی اپنا ڈریس ریپیٹ نہیں کرتی تھی۔ اس کا شوہر کسی اور کا ریپیٹ کیا ہوا تھا، یہ سوچ کر کہ جسم میں آگ لگنے لگی، نسیں غصے سے پھٹنے لگی تھی۔ وہ دبے قدموں سیڑھیوں سے بڑے بڑے قدم بھرتے ہوئے روم کی جانب بھاگ رہی تھی، پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے راستے میں پڑی ہوئی ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ گیا، مگر اس کے دل میں جو درد تھا وہ اس درد کے سامنے یہ کچھ نہیں تھا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ وہ گر کر اٹھی، پھر سے بھاگتے ہوئے روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بیڈ پر آ کر اوندھے منہ گری۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں بھر رہی تھی، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھا لی، منہ کو زور سے الٹا لیٹے ہوئے تکیے میں گھسایا ہوا تاکہ اس کی سسکیاں باہر نہ نکلے۔ تم جیسی گھٹیا عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، تمہاری وجہ سے میرا ہر عورت سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ رومان شاہ اسے دھکے دیتے ہوئے خود سے الگ کیا تھا۔ دھکا دینے سے وہ زمین پر گری تھی، مگر وہ بھی مہک تھی جس میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جو اپنے مفاد کے لیے تو کچھ بھی کر سکتی تھی۔ آخر انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، یہ مہک کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ مہک واپس سے اٹھتی، رومان شاہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ مہک واپس سے اٹھتی، رومان شاہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے سینے سے لگے۔ رومیو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میں آج تو میں بھی تو آج تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ گھٹیا عورت، تم مجھ سے نہیں میرے پیسے سے پیار کرتی ہو۔ رومان شاہ اسے دھتکار کر خود سے الگ کیا تھا۔ نہیں، میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اور کہیں نہ کہیں یہ سچ بھی تھا کہ رومان شاہ کی خوبصورت پرسنالٹی کو دیکھ کر مہک اس پر مر مٹی تھی۔ وہ ہر حال میں رومان شاہ کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں تم سے پیار نہیں کرتا، جو تم سے پیار کرتا تھا وہ بے وقوف رومیو تھا، جسے لوگوں کی پہچان نہیں تھی۔ اور میں رومیو نہیں، رومان شاہ ہوں، جسے تم جیسے چہروں کی بہت اچھی طرح سے پہچان کرنی آتی ہے۔ غصے سے بھری روبدار آواز میں کہا۔ رومیو بھی مجھ سے پیار کرتا تھا، اور رومان شاہ بھی مجھ سے ہی پیار کرے گا۔ تم کل بھی میرے تھے اور آج بھی میرے ہو۔ اس کی ادا میں اپنے حسن کا غرور تھا، اسی غرور میں وہ رومان شاہ پر اپنا حق جتا رہی تھی۔ غلط، رومان شاہ صرف اور صرف میرب کا ہے، اور رومان اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کو خود پر حرام سمجھتا ہے، جس کا حکم میرا رب بھی دیتا ہے۔ میرے پاس میرا جائز رشتہ ہے، مجھے تمہارے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے نفرت ہوتی ہے، نفرت۔ رومان شاہ کے ایک ایک انداز سے مہک کے لیے نفرت نظر آ رہی تھی۔ رومیو، ہمارے درمیان تمہاری وقتی بیوی کی کوئی جگہ نہیں۔ رومان شاہ کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اپنا حق جتا رہی تھی۔ بکواس بند کرو، اپنی گھٹیا زبان سے میری بیوی کا نام لینے کی بھی کوشش کی تو زبان کتی سے کھینچ لوں گا، اور دوبارہ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش بھی مت کرنا، تمہارے ہاتھ کو اکھیڑ کر رکھ دوں گا۔ مجھے لاچار رومیو مت سمجھنا، اور اپنے اس گھٹیا وجود کو مجھ سے دور رکھو۔ پھر سے پاس آ کر کھڑی مہک کو شانے سے دھکا دیتے ہوئے پیچھے کیا۔ بیوی، وہ بالکل بھی تمہارے لاول کی نہیں، بے وقوف بچوں جیسی حرکتیں ہیں اس کی۔ کہیں سے بھی وہ میچور لگتی ہے، تمہارے قابل ہی نہیں، تمہارے سامنے بچی لگتی ہے وہ۔ ہاں، وہ مجھ سے عمر میں کم ہے، مگر وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ میرے لیے اپنی جان تک دے سکتی ہے۔ رومان شاہ نے فخر سے بولا تھا۔ اگر وہ بچی ہے تو اسے سنبھالنے کے لیے میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں، پوری زندگی اس کے نخرے اٹھاتے رہنا، کیونکہ وہ تمہاری عمر سے بہت چھوٹی ہے۔ وہ کبھی بھی تمہارے معیار پر پوری نہیں اتر سکتی۔ کہاں تم فولاد جیسے مرد، اور کہاں وہ پھول جلی سی کہیں سے بھی اس کا اور تمہارا میچ نہیں۔ مہک نے بھی قسم کھائی تھی کہ آج وہ ہر بار آزمائے گی رومان شاہ کو پھر سے اپنے قریب کرنے کا۔ اس کا اور میرا میچ ہے یا نہیں، یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میچ تو میں نے دیکھ لیا ہے۔ اگر تال میل اتنا اچھا ہوتا، اتنی ہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی، تم دونوں میں تو اس وقت یہاں پر کھڑے ہوئے سگریٹ نہیں پھونک رہے ہوتے۔ آنکھیں گھماتے ہوئے طنز کر رہی تھی۔ تم اپنے بارے میں سوچو، تم کیا ہو؟ تمہیں تو تمہارے شوہر نے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا ہے۔
और तुम आई हो मेरी जिंदगी को जज करने। मेरी माँ का एहसान समझो कि तुम घटिया लोगों को इस घर में रुकने की इजाजत दे दी गई है, और दोबारा अगर तुम मेरे सामने आई तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। शाह उसे धुतकार कर पीछे करता हुआ सीढ़ियों पर बड़े बड़े कदम रखता हुआ नीचे उतर गया। शाहरुम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। रात के तकरीबन 2 बजने वाले थे। मीरा बेड की दूसरी जानिब चेहरा किए हुए कंबल ओढ़ कर लेटे हुई थी। शाह को लगा कि वो शायद सो गए, इसलिए आहिस्ता से अपनी कबर्ड से नाइट सूट निकालते हुए वॉशरूम के अंदर चला गया। मीरा जो जाग रही थी, रो रो कर इसकी आंखें सूजी हुई थी। इसकी आंखों के सामने वो मंजर जा ही नहीं रहा था, जिस तरह से महक शाह के सीने किस लगी हुई थी, और जो बातें वो कर रही थी वो मीरब के दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रही। आखिर कैसे निकलती वो बातें? बोलने लायक थी भी तो नहीं। तुम अभी जाग रही हो? रोमान शाह वॉशरूम से बाहर निकला तो इसकी नजर हिलते हुए मीरब के वजूद पर पड़ी थी। मीरब, तुम अब तक रो रही हो। वो टॉवल को रखते हुए मीरब की जानिब कदम बढ़ाते हुए पास आया। सॉरी यार, अभी तक इस बात को लेकर रोई जा रही हूँ। सॉरी, आइंदा नहीं होगा ऐसा कुछ भी। मैं गुस्से में था, इसलिए सारा गुस्सा यार तुम पर निकल गया। आई एम रियली रियली सॉरी। शाह ने अपने हाथ मीरब की गाल पर रखना चाहा। वो मीरब के पास बैठ गया। दूर हटे मुझसे। मीरब ने शाह को धक्का देकर पीछे किया और खुद बेड पर पीछे को सरकती हुई बैठ गई थी। इसका रवैया बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, जिसको शाह ने नोट किया था, क्योंकि मीरब की इतनी औकात नहीं थी कि वो इतनी ऊंची आवाज में रुमान शाह से बात करते। आवाज तो कायम है तुम्हारी, किस बदतमीजी से मुझसे बात कर रही हो? ये क्या तरीका था मुझे पीछे करने का? शाह का इशारा धक्के की तरफ था। आप मुझे तरीके मत समझाएं, आप सब तरीके मुझे समझ में आ गए हैं। क्या हो गया है तुम्हें मुंह से कुछ बोलोगे? मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। वो गुस्से से लाल होते हुए अपने आंसुओं को बड़ी बेदर्दी से हाथों की पूंछ से रगड़कर साफ करते हुए बैठते हुए उतर गई। वो सो की स्पीड से रूम से बाहर जा रही थी। रुमान शाह ने पीछे से जबरदस्ती पकड़कर उसे खींचते अपने साथ लगाया था, वरना वो अब तक दरवाजा खोलकर बाहर जा चुकी होती। रुमान शाह, कहाँ जा रही हो? मीरा, कहीं भी जाऊं, आपको इससे मतलब? रुमान शाह, इस बकवास की वजह। मीरा, मेरी हर बात बकवास ही है। मेरा खुद भी एक बकवास है। रुमान शाह, अब मुंह से कुछ बोलोगी कि तुम जल कुकड़ी क्यों बनी हुई हो? मीरा, मेरा दिमाग खराब हो गया इसलिए। रुमान शाह, दिमाग खराब होने के लिए दिमाग का होना बेहद जरूरी है। मीरा, हाँ, अगर दिमाग होता तो मैं आपसे प्यार करने की खता क्यों करती? रोमान शाह, आप तो खता कर बैठी हो ना। अब तो कुछ नहीं हो सकता। मीरब, हो सकता है। रोमान शाह, क्या हो सकता है? मीरब, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी, ये हो सकता है। रोमान शाह, जाकर दिखाओ, अगर तुम्हारी जान न निकाल लूँ तो। मीरब, जो भी करना है कर ले, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। रोमान शाह, अपनी मर्जी से जबरदस्ती मेरी जिंदगी में तुम शामिल हुई थी। अब तो सिर्फ मेरी जिंदगी से तुम्हें मौत ही निकाल सकती है। मीरब, तो ठीक है, आपसे दूर जाने के लिए मुझे मौत भी कबूल है। रोमांच, मेरी इजाज़त के बगैर तुम्हें मरने की भी इजाज़त नहीं है। मरने की भी इजाज़त नहीं है। मेरा, आपके साथ रहने से तो मर जाना ज़्यादा बेहतर है। मेरी सांसें घुट रही हैं आपके पास होने से। शायद ज़बरदस्ती उसे अपनी बाहों में कसे हुए थे, वरना मेरा किसी भी लम्हे रूम से बाहर जा सकती थी। इसका गुस्सा देखकर शाह हैरान था। मीरब के अंदर इतना जहर कहाँ से आया था? वो सोचे जा रहा था। प्लीज मुझे जाने दे, वरना मैं खुद को कोई नुकसान पहुंचा लूंगी। वो चीख रही थी। जाने दूंगा, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। तब तक तुम मेरी बाहों की हिरासत से नहीं निकल सकती, जब तक अपना मुंह नहीं खोलोगी। शाह में छत पर आई थी, जब आप मोहब्बत की दास्तान एक दूसरे के गले लगकर सुना रहे थे। अब शाह को सारी बात समझ में आ चुकी थी। मेरा किस तरह से तड़पना इसको समझ में आ रहा था कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही है। शाह अब कभी मेरे थे ही नहीं। मेरा रोते हुए तड़प कर शाह को खुद से दूर धकेल रही थी, जबकि शाह जबरदस्ती इसके पास होकर उसे सीने से लगाकर समेटना चाहता था। तुम इस वक्त बहुत ज्यादा सोच रही हो, थोड़ी नॉर्मल हो जाओ, बैठकर बात करेंगे। नहीं शाह, कोई बात नहीं होगी, सब कुछ खत्म हो गया तो बात क्यों करनी है? मीरब तो पागल थी, हमेशा शराब के पीछे भागती रहे, जो कभी हकीकत था ही नहीं। वो हाथ उठा उठा कर पागलों की तरह बोली जा रही थी। इसके रोने में इतना दर्द और तड़प थी कि रोमान शाह बार बार उसे हाथ से पकड़कर अपनी बाहों में समेट रहा था। तुम्हारा शाह शराब नहीं था, बेवकूफ लड़की, वो कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है। तुम्हें सब बता दूंगा। फिलहाल यूं रो रो कर खुद को हलकान मत करो। पक पक करके अपने ही दिमाग को पका रही हो। हाँ हाँ, तो कहा है ना कि मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, ना समझो। अब मुझे जाने दें, आपके पास इतनी खूबसूरत चॉइस मौजूद है, तो फिर आप क्यों मेरे साथ अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं? इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो अपने आपे से बाहर होती अपने बालों को पकड़कर खींच रही थी। मीरा, मीरा, होश में आओ, पागल हो गए हो? शायद के दोनों हाथ जबरदस्ती सख्ती से पकड़े हुए खड़ा था, क्योंकि वो खुद को नुकसान पहुंचा रही थी, अपने मुंह पर थप्पड़ मार मार कर।
इसने अपने खूबसूरत चेहरे पर बेशुमार निशान बना दिए थे। इसके खूबसूरत मखमली चेहरे पर इसकी उंगलियों की छापेबाजी नजर आ रही थी। शाह मेरे हाथ छोड़ दे। वो अपने हाथों को खींच रही थी। छोड़ दूंगा, पहले वादा करो कि खुद को वो नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मेरा क्यों पागलों की तरह खुद को अजियत पहुंचा रहे? मैं पागल हूँ? वो हंस रही थी। आपके दिल में किसी और की मोहब्बत मौजूद थी और मुझे पता ही नहीं चला। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं। आप मेरे अब के कभी थे ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो हमेशा यही सोचती रह गई कि आपका मिजाज मुझसे बहुत मुख्तलिफ है। मेरा रहन सहन आप जैसा नहीं। मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, यही सारे रीज़न है कि आप मुझे पसंद नहीं करते। मेरे अब तो खुद को आपके काबिल ही बनाती रह गई, मगर असल हकीकत तो कुछ और ही थी, जिसे मैं बेवकूफ़ समझ ही नहीं सकी। हाँ हाँ हाँ, वो पागलों की तरह हंसते हुए, रोते हुए हंसने लगी थी। आपको पता है कि मैं यूनिवर्सिटी में खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी। मुझे लगता था कि मैं लोगों को एक नज़र देखकर समझ जाती हूँ कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। असल में मीरा अब कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, ये तो मुझे आज पता चला है। फिर अब मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी तो मैं तो कुछ तुम्हें कुछ समझाऊंगा। रुमान शाह मीरब की हालत देखकर बहुत घबराया हुआ था। मीरब अपने हवासों में नहीं थी। अच्छा, आपको मेरे मौके की जरूरत है तो मैं आपको मौका दे तो रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ ना आपको छोड़कर हमेशा के लिए, आपको आज़ाद करके। आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं, जैसे चाहे रह सकते हैं। मैंने तो आपकी आज़ादी ही छीन ली, मैं ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में शामिल हो गई। अगर आप परेशान ना, मैं जैसे आई थी वैसे ही आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या मौका दूँ? आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी, अपनी जान, अपनी बचपन की मोहब्बत, आपका खूबसूरत इश्क महक, इसके साथ एक मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारना, जिसके लिए आपने मेरी मोहब्बत को धुतकारा, मुझे कभी अपने दिल में जगह ही नहीं दी। इतनी सी जगह भी नहीं दी। और रोते हुए उंगली के हाथ मोरे की तरफ इशारा कर रही थी। कभी मेरी तरफ मोहब्बत से नहीं देखा। कैसे देखते? आपके दिल का जाम तो महक की मोहब्बत से भरा हुआ था। सारी मोहब्बत तो आप इसके नाम कर चुके थे। इस मोहब्बत से भरे हुए जाम में मीरब के लिए तो जगह ही नहीं थी। उसी से सिक सक कर रोते हुए अपने हाथों से उल्टे सीधे इशारे कर रही थी। शायद इतनी खुशकिस्मत है ना महक, जिसको आपने प्यार किया, जिसको आपने चाहा। मेरा हमेशा हकीकत वो नहीं होती जो इंसान को दिखाई देती है। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। तुम सिर्फ एक ही पहलू पर अपना फैसला नहीं कर सकती। क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? शायद तकलीफ लफ्ज़ बहुत छोटा है। मीरब को तो मर जाना चाहिए। वो कभी रोते रोते हंसती थी और कभी हंसते हंसते रोने लगती। खबरदार अगर दोबारा अपने मुंह से ऐसा लफ्ज़ निकाला तो। इसके दिल में दर्द की एक टीस उठी थी। शाह ने मीरब के लब पर अपनी उंगली रखते हुए कहा था, मैं अपने मुंह से ऐसे ही अल्फाज निकालूंगी, बल्कि मैं करके दिखाऊंगी मेरी जिंदगी में जो कुछ मेरी मर्जी करूं। उषा का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए आंखों में आंखें डालकर न डर होकर बोली, मीरब तमीज से बात करो। मुझे औरतों के इस अंदाज में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। लहजा सख्त हुआ था शाह का। कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा लहजा पसंद नहीं है, आपको तो मैं भी पसंद नहीं हूँ, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? मैं जिस भी लहजे में जिस भी अंदाज से बात करूँ, आप मीरब की आंखों में डर नहीं, सिर्फ दर्द और आंसू थे। मीरब, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी हर बात सर आंखों पर, मगर मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो शाह, किसने कहा है कि आप मेरी बदतमीजी को बर्दाश्त करें? आपकी कोई मजबूरी नहीं मुझे बर्दाश्त करना। मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना है, मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ। तो फिर बदतमीजी करने या सहने का तो जवाब ही पैदा नहीं होता। आंसू से भरी आंखों से शाह को पीछे करती हुए अलमारी से बैग निकाल कर बेड पर खोल कर रख दिया और तेजी से अपने कपबोर्ड से कपड़े निकालते हुए इसमें भरने लगी थी। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्या आपने मुझे खरीद लिया है? तुम यही समझो कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है। तुम अब मेरी मलकियत हो। मेरा कोई प्रॉपर्टी या सामान नहीं है जिसे आपने खरीद लिया है। मैं जीती जागती इंसान हूँ और लवारिस बिल्कुल नहीं हूँ जो आप मेरे साथ जैसा चाहे सलूक कर सकते हैं। तुम मेरी प्रॉपर्टी भी हो और मैं जैसा चाहूँ तुम्हारे साथ सलूक भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी इतनी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो भी आएगा तुम बकती ही चली जाओगी। शाह ने गुस्से से मीरा को जबड़े से पकड़कर कमर में हाथ डालते हुए अपने करीब कर लिया। शाह, आप यूं गुस्सा करके ये आंखें दिखाकर मुझे डरा नहीं सकते। जो मीरा आपसे डरते थे वो आपसे बहुत प्यार करते थे। वो आपको खो देने से डर जाते थे, इसलिए आपसे जबान दराजी नहीं करती। मगर मैं ना तो आपसे प्यार करती हूँ, ना ही मैं आपसे डरूंगी। मीरा ने शाह का हाथ झटकते हुए आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, रुमान शाह, मुझे डराना बंद करें, क्योंकि मैं ना तो डरूंगी और ना ही चुप करूंगी। मुझे आपके साथ नहीं रहना तो मतलब नहीं रहना। आज मीरब के अंदर वही नडर सरभरी और खुद सर मीरब नजर आ रही है। क्या 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 कहा तुमने? शाह ताज्जुब से मीरब की जानिब देखते हुए पूछा। मैंने कहा कि आप मुझे डरा और धमका नहीं सकते और ना ही मुझे आपके साथ रहना। मीरब ने गुस्से से अपनी बात को रिपीट किया। नहीं नहीं, इन सब बातों के दरमियान भी तुमने कुछ कहा है। तुमने कहा रोमांचा। क्यों कहा?
तो मुझे सिर्फ शाह कह कर बुला। रुमान शाह को मीरब का नाम लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रुमान शाह को मीरब के मुंह से शाह सुनना ही अच्छा लगता था। वो इस पागल लड़की को कैसे बताता कि जब उसे शाह कहकर बुलाती है तो इसका दिल इसके शाह का दिल कितनी रवानी से धक धक करता है। जब उसे शाह कहकर बुलाती है तो रुमान शाह के आँख लब अंदर ही अंदर मुस्कुराते थे। आज इसका ये रुमान शाह बोला रुमान शाह के दिल को आग लगाने वाली बात थी। नहीं, अब से मैं आपको रुमान शाह कहकर ही बुलाऊंगी, क्योंकि आप मेरे शाह नहीं हैं। जिस शाह को मैंने प्यार किया था वो सिर्फ मेरा था, और हमेशा मेरे दिल में इस शाह का अक्स महफूज रहेगा। आप रुमान शाह, महक के रुमान शाह। इसका एक एक लफ्ज तीर की तरह शाह के दिल में चुप रहा था। मीरा, अब तुम इस वक्त अपने हवासों में नहीं, तुम आराम से सो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं। इस वक्त तुम कहीं भी नहीं जा सकते, और ना ही मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। सुबह उठकर इस मुद्दे पर बात करेंगे। मैं नहीं रुकूंगी, मैं अभी ही जाऊंगी, और मुझे पता है कि आपको मेरी फिक्र नहीं है। फिक्र आपको अपनी बहन की है। हाँ, मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र है। अगर तुम्हारी वजह से इसकी जिंदगी में कोई मुश्किल खड़ी हुई तो मेरा, मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। पहले भी तुम्हारी वजह से मेरी बहन को मुझे इतनी जल्दी रुखसत करना पड़ा। मैं तो अभी इसकी शादी करने के हक में भी नहीं था। निकाल ले मेरी जान, मुझे आपसे डर नहीं लगता। वो नडर अंदाज से बोलती हुई कपड़े समेट कर हैंड कैरी में डाल रही थी। मीरब, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जानवरों वाला रवैया इस्तेमाल करूं। मीरब को हाथ से पकड़कर खींचकर अपने साथ लगाते हुए दूसरा हाथ इसी कमर में डाल लिया। रुमान शाह, जितना गलत आप मेरे साथ कर सकते थे वो कर चुके हैं। इससे ज्यादा क्या करेंगे? करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मगर फिलहाल मैं नहीं करना चाहता। मगर फिर भी अगर तुम मुझसे वो सब कुछ करवाना चाहती हो तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। दूर रहे मुझसे, खबरदार अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। हाथ तो मेरी जान में तुम्हें पहले ही रात लगा चुका है। हाथ किया तुम्हें तो मैं अपनी सांसों भी से भी ज्यादा नजदीक कर रखा था। रमान शाह के करीब होने से मीरब ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी, जो बिल्कुल भी कारामद साबित नहीं हुई। शाह, शादी की पहली रात ही तुम्हें मैंने अपनी सांसों से ज्यादा नजदीक करके अपने साथ लगा लिया था। तुम्हारे जिस्म पे मेरे हाथों के लम्स थे। तुम जब बेहोश पड़ी हुई थी और तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे कपड़े चेंज थे, वो मैंने किए थे। इस वक्त तुम्हारा खूबसूरत सरापा भी मेरे जेरे नजर आया था। अगर मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, और मैं किसी का जवाब दे भी नहीं था। अगर नहीं किया तो इसलिए कि मैं तुम्हें पूरे हक से तुम्हारे होश और हवास में खुद के करीब करना चाहता था। और आज के बाद तो मुझे ज्ञान मत देना कि मैं क्या कर सकता हूँ। करने को तो मैं तुम्हारी सांसें पे जाऊँ, तुम्हारे इतने नजदीक हो जाऊँ कि तुम्हारी और मेरी धड़कनें एक महसूस होने लगे। और मेरे ख्याल से वो वक्त आ चुका है कि मुझे ये कर लेना ही चाहिए। इसकी कमर में हाथ डालकर खुद बेड पर गिर गया तो मेरा भी इसी हालत में उसके ऊपर आ गिरी थी। गिरने से उसके रेशमी बाल शाह के चेहरे पर ऊपर बिखर गए। मेरा झटपटा कर उठना चाहती थी, मगर शाह के हाथों की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि मेरा हिल भी नहीं सकी। मीरब ने चिढ़कर अपने नाखून शाह के सीने में खो दिए। हा हा हा, मेरी जंगली हिरनी, इससे कुछ नहीं होने वाला। शाह, चट्टान है तुम्हारे ये नाजुक हाथ और नाजुक नाखून, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, मगर तुम्हारा ये खूबसूरत सराफा मेरा बहुत कुछ बिगाड़ रहा है। शाह की नजरें मीरब के गले से होती इसके दिल वाले मकाम पर जा रही थी। इसके बेबाक नजरों से बचने के लिए मीरब ने अपना सर इस दुश्मन जान के सीने पर रख दिया। बहुत ही बेशर्म है आप। हा हा हा। शाह अच्छी लब शाह के अच्छे लब कहका लगा कर हंसा। अभी तो मैंने पूरी बेशर्मी नहीं दिखा। कहाँ है जाने शाह? इसने मीरब के बालों पर लप रख कर चूम लिया। मैं नहीं हूँ आपकी जान महक है, और आप इसी से प्यार करते हो। इसीलिए मुझे झूठा प्यार और तसल्लियां देने की जरूरत नहीं है। मीरब का गुस्सा बरकरार था। अब ना तो मैं तुम्हें झूठियां तसल्लियां दूंगा, और ना ही अपनी सफाई में कुछ कहूंगा। वक्त आने पर ही सारी बात होगी। फिलहाल तुम चुपचाप मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई पर जोर देते हुए बोला। आप छोड़े मुझे, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं सोऊंगी। शाह की गिरफ्त से निकलने की एक और कोशिश की थी। सोना तो तुम्हें मेरी इन पनाहों में ही पड़ेगा, और बेफिक्र रहो, मेरी वायर्स नंगी नहीं है जो तुम्हें करंट लग जाएगा। मेरा आपका गुस्सा और बदहवासी देखकर इस वक्त रुमान शाह बिल्कुल भी इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था, और इस वक्त खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती थी, और घर से भागकर इसे दूर भी जा सकती थी। इसलिए शाह उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए सोना चाहता था, ताकि वो शाह की कस्टडी से भाग ना सके। आप इसी को जाकर अपने साथ लगाकर अपनी मोहब्बत निछावर करें, जिस तरह से लैला मजनू की तरह एक दूसरे के साथ चिपके हुए खड़े थे। गलत, इससे तो दूर ही खड़ी हुई थी, जितना इस वक्त तुम मेरे साथ चिपकी हुई हो। शाह शरारती होने लगा था। उसे मीरब का जाली सोना सुकून दे रहा था। मीरब की जिंदगी में इसकी क्या अहमियत थी, इसका रोना और जाली सोना शाह पर बाजी करा गया। हाँ, तो जबरदस्ती मुझे अपने साथ मत लगाए, मुझे कोई शौक नहीं आपके साथ लगने का। आप इसी को जाकर अपने साथ चिपकाएं, सीने से लगाएं। और वो कहते कहते हुए रुक गई, मगर शाह को उसके बाद का मफहूम बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया था। नहीं, मैं तो तुम्हें ही अपने साथ लगाऊंगा, तुम्हें अपनी मोहब्बत निछावर करूंगा।
और तुमसे ही वो कहते हुए करवट लेकर मीरब के ऊपर आ गया और जबरदस्ती मीरब के लबों पर अपने लब रखकर उसकी पंखुड़ियों को अपनी कैद में ले गया। मीरब घुटी घुटी हूँ की आवाजें आ रही थी। उसने खुद को बचाने के लिए बहुत मज़ाहमत की थी, मगर शाह इस पर इस तरह से ढेर हुआ पड़ा था कि मीरब को सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। रुमान शाह इस तरह से जबरदस्ती मुझे अपने करीब नहीं रख सकते। वो गुस्से से खुद को छुड़वाने की कोशिश जारी रखे हुई थी। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा करीब रखने का हक रखता हूँ। अब तुम चुपचाप सो जाओ, वरना अगर मैं अपने हक का जायज इस्तेमाल करने पर उतर आया तो अभी तुम्हारे होश ठिकाने लगा तुम्हारी जान निकाल लूंगा। शाह के अंदाज में कुछ ऐसा था कि मीरब डर कर चुप हो गई थी। शाह ने सारी रात मीरब को अपनी बाहों में जकड़े रखा ताकि वो कुछ भी गलत न कर सके। मीरब को न जाने रात के किस पहर नींद ने अपने आगोश में ले लिया। मेरी जान, अब तुम्हारे दिल से ये सब बदगुमानी निकालने के लिए मुझे कोई बड़ा कदम तो लेना पड़ेगा। शाह ने गहरी नजर मीरब के चेहरे पर डाली थी। इसके खूबसूरत चेहरे पर इस वक्त बहुत उदासी और मायूसी नजर आ रही थी। मीरा ने सारे रास्ते अपना फूला हुआ चेहरा ठीक नहीं किया था। एसी भी ठंडी आहें भरता हुआ घर तक सफर तय कर गया। शाह मीर की माँ इस्तकबाल के लिए फूलों का थाल लेकर मेन गेट पर खड़ी हुई। जैसे ही गाड़ी आकर रुकी तो शाहमीर की माँ ने अपने बहू और बेटे पर फूलों की बरसात कर दी थी। आखिर इनके इकलौते बेटे की शादी थी। शाहमीर की माँ ममता लुटाती हुई नजरों से देखकर मुस्कुरा रही थी। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। हर तरफ लाइटें ही लाइटें लगी हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम हो मेरी प्यारी बहू। शामिर की माँ ने आंखें बढ़कर मिरहा को गले लगाते हुए अंदर आने के लिए वेलकम कहा। पास खड़े हुए जुबैर साहब ने भी अपनी बहू के सर पर प्यार देते हुए वेलकम किया। मेन गेट से लेकर रूम तक के पूरे रास्ते को फूलों से सजाया गया था। कमरे में खूबसूरत गुलाब के फूलों की मसहरी सजी हुई थी। बेड के चारों तरफ ताजे गुलाब के फूल और कलियों की लड़ियां लटक रही थी। बेड के ग्राउंड पे 3 ताजे गुलाब के फूलों और ग्रीन पत्तों के बुके बनाकर लगाए हुए थे, जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों के महक रूम के माहौल को बहुत रोमांटिक बना रही थी। शामिर का कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। बड़े से कमरे की एक साइड पर किंग साइज बेड रखा हुआ था। सामने दीवार के साथ खूबसूरत सोफा सेट रखा गया था। रूम के पर्दे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। मिरहा को शाहमीर की माँ ने बड़े प्यार से बेड पर बिठा दिया था। मिरहा का दिल जोर से धड़क रहा था। वो बहुत नर्वस हो रही थी और इसके नर्वस होने की वजह शाहमीर था। एक अनजाना सा ख्वाब जो उसे शाहमीर के पास आने से महसूस होता था। इस डर ने इस वक्त उसे अपने शिकंजे में ले रखा था और उसकी घबराहट इसके चेहरे से नजर आ रही थी। क्या बात है बेटा, तुम क्यों इस कदर घबराई हुई? ये तुम्हारा अपना घर है। हम भी तुम्हारे अपने हैं, शामिर की माँ ने बड़ी मोहब्बत से पास बैठकर प्यार से कहा था। शामिर इस वक्त रूम में मौजूद नहीं थी। रूम में चंद एक मेहमान खवातीन जो रह गई थी वो थी अमिरहा के साथ। बेटा, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मिरहा की मरी सी आवाज आई थी। बेटा, मुझे अपनी आंटी मत कहो। तुम भी मुझे शाहमीर की तरह मामा कहकर बुलाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मीरब की तरह तुम भी तो मेरी बेटी हो ना, इसलिए तुम भी मुझे मामा ही कहा करो। लहजे में बहुत शफकत और मोहब्बत। मेरा कुछ देर के लिए नॉर्मल हो, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। आप तुम आराम से कंफर्टेबल होकर लेट जाओ, बहुत थक गई होगी। एक तो आजकल की बच्चियों पर जुल्म किया जाता है। इतने भारी भारी काम वाले लहंगे तैयार करते हैं ये डिजाइनर के, अल्लाह की पनाह। मुझे तो तरस आता है बेचारी मासूम बच्चियों पर। इतने तो इनके खुद की जान नहीं होती जितना इनको भारी लहंगे से लाद देते हैं। शाहमीर की माँ डिजाइनर को कोस रही थी। मामा, जाती हुई शाहमीर की माँ को पीछे से मिरहा ने आवाज दी। जी बेटा, कुछ कहना चाहती हो? मिरहा की सवालिया नजरों को देखकर वो वापस आ गई, जबकि मेहमान खवातीन रूम से जा चुकी थी। क्या बात है बेटा, तो मुझसे खुलकर कुछ भी कह सकती। मामा प्लीज, आप मेरी अम्मी की जैसी हैं ना। आपने भी कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ हाँ बेटा, तो मेरी बेटी हो, बोलो क्या कहना है। प्लीज आप मुझे अपने साथ सुला लें। अंदाज बड़ा ही मासूम और बचकाना। शामिर का माँ हल्के से मुस्कुराए थे इस डरी हुई मासूम लड़की पर। बेटा, आप यहाँ पर आराम से सो जाएं। जिसका आपको डर है वो आपके कमरे में नहीं है। आप बेफिक्र होकर सो जाएं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपका कमरा है और आप यहाँ पर आराम से सो सकती हैं। वो तसल्ली देते हुए मुस्कुराए थे। पक्का वो इस कमरे में नहीं आएगी? फरहान तसल्ली करनी चाहिए। जे मेरी जान, वो नहीं आएगी। मैं उसे बोल देती हूँ कि तुम आराम से रूम लॉक करके सो जाना। तो मुस्कुराते हुए रूम से निकल गई। सीढ़ियों पर शामिर और उसकी माँ का आमना सामना हो गया। तो शामिर बहुत तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ती तूफान बनकर अपने कमरे की जानिब आ रहा। शामिर की माँ उसे रोक कर खड़ी हुई। बेटा जी, आप अपने कमरे में नहीं जा सकते। क्यों? लहजा बहुत हैरानी वाला था। इसलिए कि वो बच्ची तुमसे बहुत डरी और घबराई हुई है और इस बच्ची की माँ ये नहीं चाहती कि इसकी बेटी और ज्यादा डरे। इसलिए मेरे अकड़ू पुलिस वाले बेटे, आप स्टडी रूम में जाकर सो जाओ। इसकी मामा कान से पकड़कर प्यार से बोली। मामा यार, हद हो गई है। मैं क्यों स्टडी रूम में जाऊँ? मैं तो अपने रूम में ही सोऊंगा। अंदाज बहुत जिद्दी था।
तुम स्टडी रूम में जाकर सो जाओ, ये मेरा ऑर्डर। मामा यार हद है, आज तक आपने कभी सुना है कि शादी की पहली रात ही लड़के को स्टडी रूम में सुलाया गया? बेचारा सा मुंह बनाकर बोला था। मैंने तो आज तक ये भी नहीं सुना कि डंके की चोट पर अपनी बहन का निकाह करवा कर किसी की बहन से जबरदस्ती निकाह कर लिया। मामा यार वो कल की बात थी, अब तो मैं आपकी बहू से बहुत प्यार करता हूँ और प्लीज ये जुल्म मेरे साथ मत करें। शरारती बच्चे, शरारती बच्चे ठंड रखो, वो तुम्हारी है, कहीं भागी नहीं जा रही। उसे थोड़ा रिलैक्स हो जाने दो, वो इस वक्त बहुत घबराई हुई है, उसे संभलने का मौका दो। इसलिए तुम चुपचाप स्टडी रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा रही हूँ। और अगर कोई चालाकी की या मेरी बेटी को तंग करने की कोशिश की तो बहुत थप्पड़ लगाऊंगी, ये याद रखना। हाथ उठाकर थप्पड़ का इशारा करते हुए बोली। मामा हद है, आपने तो इतनी जल्दी पार्टी बदल ली। मामा लगता है आपकी यादाश्त चली गई। वो आपकी बहू है और मैं आपका बेटा हूँ। वो अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर अपनी माँ की यादाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा। चुपचाप जाकर सो जाओ वरना बहुत जूते पड़ेंगे। तो मैं शामिर नहीं। नहीं मामा, लगता है आपकी यादाश्त बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको आज भी याद है कि शामिर को जूते ही पड़ने चाहिए। वो दांत निकालते हुए हंसता हुआ अपने रूम की जानिब जा रहा था। शामिर की माँ सीढ़ियों से नीचे उतर चुकी थी। शामिर का स्टडी रूम और रूम बिल्कुल साथ साथ थे। शामिर फिर भी बाज नहीं आया था। इसने गुजरते हुए अपने रूम का हैंडल घुमाकर अंदर जाने की कोशिश की, मगर मोहतरमा अंदर से रूम लॉक कर चुकी थी। देखता हूँ कब तक तुम यूं रूम लॉक कर करके मुझसे बचती हो। वो गुस्से और मोहब्बत की मिली जुली कैफियत से कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ा के रूम में आकर इसने अपने कपड़े चेंज किए। ब्लैक कलर का ट्राउजर शर्ट पहने हुए बहुत बेचैन होकर एक टांग पर को उठाकर दूसरी टांग पर रखकर सोफे पर बैठ गया। शामिर की मामा ने इसके स्टडी रूम की कबर्ड में इसके काफी सारे कपड़े लगा रखे थे, क्योंकि शामिर अक्सर काम करते हुए स्टडी रूम में सो जाया करता था। शामिर को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, यूं अपने ही कमरे से निकाले जाने पर। इसने कितने अरमान सजाए थे इस रात के लिए, और सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए देख शामिर तड़प रहा था। नहीं, खूबसूरत चेहरा इसकी नजरों के सामने से जा नहीं रहा था। इसने तो पता नहीं रास्ता कैसे तय किया, ये तो उसका दिल जानता था। और आज की रात की दूर इसके अंदर तूफान बर्पा किए हुए। अचानक से शामिर के दिमाग में तूफानी आइडिया आया था। वो मुस्कुराते हुए बेड से उठा और इसमें अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करते ही नजर लेटी हुई मेरे पर गई, जो बेड पर लेट कर नजरों को घुमाकर पूरे कमरे का बड़े गौर से जायजा ले रही थी। शाहमीर के लैपटॉप इसके रूम के कैमरे से कनेक्टेड था। शाहमीर एक पुलिस वाला था और इस तरह के आइडियाज के दिमाग में हमेशा रहते थे। इसने तो अपने कमरे में रखे हुए कुछ खास फाइल्स की वजह से रूम में कैमरा नस्ब किया था, मगर ये कैमरा इसके इतना काम आएगा ये इसने नहीं सोचा था। वो अपनी दुल्हन बनी बीवी को बड़े गौर से देखकर मुस्कुराया। मेरा लाइट जलाकर ही लेटे हुई थी। अपनी डरपोक बीवी को वो इतना तो जान चुका था कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। और जब भी रात को उसे मिलने गया वो यूं ही लाइटें जलाकर रात को दिन बनाकर सोई होती थी। इसके तूफानी दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया था। इसने अपना फोन निकाल कर मैसेज टाइप किया था। आकर मिरहा के दरवाजे के बाहर वाली साइड पर खड़ा हो गया। उसे पता था कि बहुत जल्द उसकी डरपोक बीवी दरवाजा खोलकर बाहर आएगी, और उसकी उम्मीद के मुताबिक मिरहा ने दरवाजा खोला और लहंगे को उठाते हुए दो चार कदम बाहर चल गया। उसे अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया, जबकि नीचे हॉल में रोशनी थी। इस वक्त इसकी नजर से बचकर पीछे से गुजरता हुआ शामिर रूम के अंदर आ गया। रूम में आकर इसने चौकीदार को मैसेज टाइप करके लाइट्स ऑन करने को कहा। एक सेकंड के बाद ही रूम की लाइटें जगमगा उठी थी, तो नीचे की तरफ जाते हुए मैं वापस लौट कर रूम के अंदर आ गई और दरवाजे को फिर से अपनी सिक्योरिटी के लिए लॉक कर दी। आह, आह, आप अंदर कैसे आए? मेरा दरवाजा बंद करके वापस लौटी तो शामिर उसके पुश्त पर सीने पर हाथ बांधे खड़ा था, और अचानक शामिर को अपने सामने पाकर मेरा ने जोरदार चीख मारी। मगर रूम साउंड प्रूफ था, आखिर पुलिस वाले का कमरा था तो उसकी आवाज रूम से बाहर कैसे जा सकती थी? असले शामिर को उसके चीखने का जरा भी डर नहीं था। मेरी प्यारी बीवी, तुम्हें क्या लगता था कि तो मामा की सिफारिश करवाकर मुझे खुद से दूर रख लोगी? वो उसके करीब होते हुए कदम बढ़ा रहा था। मैंने वापस मुड़कर जल्दी से दरवाजे का हैंडल घुमाया। भागने की तो कोशिश भी मत करना। उसे झटके से घुमाकर दरवाजे के साथ लगाया। इसकी कमर दरवाजे से जा लगी। नजर शामिर के बालों से भरे हुए सीने पर गई तो सांस लेना भूल गई थी। ब्लैक टी शर्ट की बटन स्लिट से नजर आता हुआ उसका कसरती सीना मेरा के डर और दिल की स्पीड बढ़ने की वजह बन गया था। वो गहरी नजरों से इससे दुल्हन बनी हुई देख रहा। आप अंदर कैसे? मेरा हक कपाते ही आवाज में बोली। शामिर की गुर्बत इसके हवासों में छा रही थी। पुलिस वाला हूँ, मेरे लिए सी छोटी मोटी सिक्योरिटियां तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। गहरी नजरों से देखता हुआ अपना हाथ इसकी गर्दन के पीछे रखकर इसका चेहरा खुद के करीब किया। शाहमीर के भारी हाथ से निकलती हुई नरम गरम हिद्दत से इसके जिस्म पर करंट सा दौड़ गया। प्लीज मुझे जाने दे, ये आप चले जाए, मुझे आपसे डर लगता है। वो बहुत घबराई और शर्माई हुई थी। इसके बाद से शाहमीर की आंखों में चमक उभरी थी, लाबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट रकसम हुई थी।
اس کی والہانہ نظریں سامنے کھڑی اپنی شریک حیات پر جمی ہوئی تھی، جو دلہن کے روپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ باریک باریک خوبصورت نین نقش شامیر کے دل کی تاروں کو چھیڑ رہے تھے۔ نظر بے اختیار اٹھ کر پھر سے اس کی ناک میں پہنی ہوئی تار والی نوز پن پر گئی تھی۔ اس کے باریک رکیب موتی پھر سے شاہمیر کی جلن کی وجہ بن رہے تھے۔ خوبصورت اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، اپنا بھاری ہاتھ کی پشت اس کی گردن پر سہلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کے لمس سے مرہا نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں خمار کا ایک جہان آباد تھا۔ اس کے خماری سے بھری ہوئی آنکھوں کے جہان کو دیکھ کر مرہا نے فوراً سے پہلی نظریں جھکا لی۔ شامیر نے 2 انگلیاں اس کے چہرے کے نیچے رکھ کر چہرہ اوپر کی جانب اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا بھاری ہاتھ اس کی گردن پر رکھا پھر سے سہلایا۔ مرہا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کی حد تک دھڑک اٹھا تھا۔ اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور جسم سے جان تو تب نکلتی ہوئی محسوس ہوئی جب شاہمیر نے اپنے دہکتے ہوئے لب پورے حق سے اس کی بیوٹی بون پر برجمان کی۔ مرہا کو لگا جیسے جلتا ہوا انگارہ اس کی بیوٹی بون پر رکھ دیا گیا۔ بے ساختہ گرنے کے ڈر سے مرہا نے شامیر کی ٹی شرٹ کو سینے سے مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ تبھی شاہمیر نے ہاتھ اس کی نازک سی کمر میں حائل کرتے اسے تھام لیا۔ وہ یوں ہی اس کی گردن پر جھکا ہوا اس کی گردن پر اپنے لبوں کے گرم گرم لمس جوڑ رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرمی سے مرہا کا دل والا مقام کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہو رہا تھا، جو شاہمیر کو اور بھی بہکا رہا تھا۔ چھوڑے تو اپنے گرتے پڑتے وجود کو سنبھالتے ہوئے بمشکل بولی۔ تبھی شاہمیر نے چہرہ اٹھا کر مرہا کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اے سی پی کی جان، خود کو میری غربت کے لیے تیار کریں۔ آپ کے بغیر رہنا یا آپ سے دور رہنا ممکن نہیں۔ اپنے بہکے ہوئے گرم لبوں سے اس کے آنسو چن رہا تھا۔ اس کا رویا حسن اور بھی قاتلانہ لگ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت روئی روئی آنکھوں کو دیکھ کر شاہمیر کو ترس کم اور پیار زیادہ آ رہا تھا۔ میری جان، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ ہے میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اور میں اپنا پیار کہاں سے شروع کروں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے خوبصورت دلکش سراپے کو گہری نظروں کے حصار میں لیے تھوڑا نیچے جھکا اور اس اپنی باہوں میں بھر کر بیٹھ کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ نظر اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ مرہا ڈر اور شرم سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اسے بڑے آرام سے لے جا کر تکیے پر سر رکھتے ہوئے لٹایا تھا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا جو ٹوٹ جائے گی۔ اس کے سامنے تو معصوم گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ لمبے چوڑے شامر کے سامنے نازک سے جان شرم سے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گئے، جو اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو محفوظ کیے ہوئے لیٹی تھی، دوپٹے کو پینوں سے آزاد کر کے اس کے سر کو باہری دوپٹے سے آزادی دلوائی تھی۔ گھبراہٹ سے مرہا کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی، جسے وہ بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر اسے ترس بھی آ رہا تھا۔ دماغ کہتا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے، مگر وہ اپنے بے لگام آوارہ دل کا کیا کرتا، جسے اس کی غربت درکار تھی۔ وہ اپنے بے لگام و تو جذباتوں سے مجبور اسے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نازک سے اپنی رکیب نوزپن کو آہستہ سے نکال کر بیڈ پر رکھ دیا۔ اس کے خوبصورت چھوٹی سی نوزپن پر اپنے آنچے دہکتے ہوئے لب رکھ کر چوم لیا۔ آخر اپنی رکیب اس نوزپن کو ہٹا کر وہاں پر اپنے لب رکھنے سے اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچی تھی۔ نظر ماتھا پٹی پر گئی تھی۔ بڑی نرمی سے ماتھا پٹی کو اس کے خوبصورت کشادہ ماتھے سے ہٹا کر وہاں پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ کر اپنی محبت کی مہر لگائی۔ آنکھوں کو سختی سے بند کیے ہوئے اس کے لمسوں کی گرمی سے نڈھال پڑتی تڑپتے ہوئے کاندھے پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھانے لگی۔ لب اس کی خوبصورت آنکھوں پر رکھ کر بڑی محبت سے چوم لیا، اپنی گرم سانسوں کی بو سے اس کے چہرے پر دیتے ہوئے نظر پھسل کر اس کی نازک پنکھڑیوں پر آ گئی۔ وہ لبوں پر جھکا اور نازک سے لبوں کو اپنی قید میں سختی سے لے گیا۔ ہونٹوں کی نمی کو قطرہ قطرہ اس نے اپنے اندر انڈیلنا شروع کیا۔ اس کے اندر کی پیاس تھی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بنا اس معصوم جان کی اکھڑی سانسوں کی پرواہ کیے ہر چیز سے بے نیاز اپنے من کی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس کے نیچے دبک کر لیٹی ہوئی معصوم مرہا کا وجود بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، مگر اسی پہ بے رحم بنا اپنی تمنا پوری کرنے میں مگن رہا۔ اس کی بے رحمی سے سانسیں پینے سے مرہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مرہا کے آنسو شاہمیر کے گالوں کو بھی گیلا کر گئے۔ شاہمیر نے چہرہ اٹھا کر مرہا کی جانب دیکھا۔ یہ آنسو کیوں میری جان؟ ابھی تو میں نے ٹھیک سے اپنے من کی پیاس بجھائی بھی نہیں ہے۔ آواز بوجھل اور خماری بھری ہوئی تھی۔ میرے ذرا سی غربت سے میرا یار سے سک کر ہونے لگا ہے، تو جو میرے اندر تمہارے لیے محبت کا طوفان اٹھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر میری جان کیا کروں گی؟ گہری آنکھوں میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، جس کو دیکھ کر مرہا نے گھبرا کر نظریں دیوار پر مرکوز کر لی۔ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، آپ بہت گندے ہیں۔ میری سانسیں بند ہو رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی اپنا درد سنا رہی تھی۔ اے سی پی کی جان، مرنے نہیں دوں گا، مگر تمہاری سانسوں کو اپنی سانسوں میں انڈیل کر یکجان ضرور کر دوں گا۔ پلیز آپ مجھ سے دور رہیں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔
मिरहा की गहरी खूबसूरत काली आंखों में डर का एक समंदर छुपा हुआ था, जिसको इसी पे की तेज नजरें साफ साफ देख रही थी। आपसे दूर रहना मुमकिन नहीं है मेरी जान। बहकी हुई नजरों से देखते हुए इसके कानों से बड़े बड़े चुमकों को उतार कर वहां पर अपने लब रख दिए। कानों की लो पर हल्का सा दांतों का दबाव दिया। मिरहा के पूरे वजूद में बिजली की लहरें दौड़ने लगी थी। वो सिसक उठी थी एसीपी के लबों को दबाने से। हाथों में पसीने आने लगे, दिल धक धक कर रहा था, सांसें अपनी नई धुन तैयार कर रही थी। बेतरतीब होकर प्लीज नहीं। मिरहा की मरी सी मजाहमत शाहमीर के कानों से टकराई। वो अपने जज्बातों में चूर मिरहा की मजाहमत को नजरअंदाज करते हुए खुमारी से उसके बालों में मुंह छुपाने लगा था। मिरहा के गले में भारी ब्राइडल सेट इसके लबों और गर्दन के बीच में रुकावट बन रहा था। बड़ी नरमी से नेकलेस को गले से निकाल कर अलग करते हुए नजर इसकी खूबसूरत ब्यूटी बॉर्न पर थी। शामिर के जज्बात से बहकी हुई गरम गरम सांसें मिरहा की गर्दन को जला रही थी। मिरहा का दिल था कि पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट से दौड़ रही थी। शामिर के लब इसकी ब्यूटी बॉर्न पर पराजमान होकर बड़ी शिद्दत से उससे चूम रहे थे। मिरहा को अपने गले पर जलन महसूस होने लगी थी। वो दुश्मन जान अपनी हर कसर इसकी नाजुक सी गर्दन पर निकाल रहा था। लबों की सख्तियां बढ़ती जा रही थी, कहीं पर हल्की हल्की दांतों की चुभन भी महसूस कर रही थी। शाहमीर ने करवट लेते हुए उसे अपने ऊपर कर लिया। शाहमीर का हाथ इसके बालों के बने हुए जूड़े पर गया, जिसको कुछ इस अंदाज से बनाया हुआ था कि दो पिने निकालने से सारे बाल इसकी कमर पर आबशार की तरह बिखर गए। इसके चेहरे के साथ अपना चेहरा रब करते हुए अपने ठाठे मारते हुए समंदरी जज्बात को तस्कीन देने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर इसका आवारा दिल इसे पूरी तरह से अपनी दस्तरस में चाहता था। अपने सख्त मर्दाना हाथ इसकी कमर पर रखकर उसे दबाते हुए अपने अंदर समाने लगा था। गिरफ्त इतनी कसी हुई थी, मासूम जान का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मीरा की सांसें रुक रही थी, इसकी हद से ज्यादा नजदीकियों से डर से इसकी जान हलक में अटकी हुई थी। घबराहट से थूक हलक से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ शामिर जितना इसके नजदीक हो रहा था, वो बहकता ही चला जा रहा था। उसे वापस से करवट लेते हुए अपने नीचे ले आया। मेरा को दूसरी तरफ करवट दिलाकर इसकी कुर्ती की बैक डोरियां खोलने लगा। जैसे जैसे डोरियां खुलने लगी, मिरहा की दूधिया खूबसूरत कमर इसकी खुमारी नजरों के सामने थी। शाहमेर की अपनी धड़कनें भी उथल पुथल होकर अपना ही रक्स कर रही थी। आधी डोरियां खोलकर ही इसके सबर का बंध टूट के चुका था। मीर प्लीज नहीं। कोई मजाहमत मत करना, मैं नहीं सुनने वाला। मुझे हर हाल में तुम्हारे वजूद को खुद में समाना है। तुम्हारा ये खूबसूरत हुस्न मुझे कितने दिनों से पागल किए हुए। आज मुझे पूरी तरह से तुम्हें हासिल करना है। तुम पर मेरा पूरा हक है मेरी जान, कुछ गलत नहीं कर रहा। अपने लबों को उसकी कमर पर रखकर एक के बाद एक लम्स छोड़ रहा था। मीर प्लीज। मिरहा की नाजुक जान मजबूत एसीपी के लबों के गुस्ताखियां और गरम गरम लम्स बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरी जान तुम मेरी और मैं तुम्हारा, फिर ये रुकावटें मत खड़ी करो। आवाज बहकी हुई थी, कमर पर कहीं कहीं मिरहा दांतों की चुभन महसूस कर रही थी। जितना बहकाओगे मैं इतनी तुम्हारी जान को मुश्किल करूंगा। वो उसके ऊपर लेटा हुआ अपने दांतों की चुभन देने लगा था। चुभन से वो सिसकने लगी थी। वो कुर्ती को कमर से आहिस्ता आहिस्ता सरकाने लगा था। उसके दिल फरेब गोरे बदन अपनी नजरें गाड़े हुए गहरी नजरों से देखकर मुस्कुराया था। लब इसके खूबसूरत दूध या नाजुक सी कमर पर पड़ते हुए बलों पर गई थी, जहां पर दो काले तिल मिलकर बैठे हुए इसकी कमर की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। बीवी कितनी खूबसूरत हो यार, तुम मुझे अपने हुस्न से पागल कर दो। इसकी कमर में हाथ डालकर करवट बदल इसका चेहरा अपनी जानिब किया। इसकी खूबसूरत आंखों में अपनी गुर्बत के रंग देखना चाहता था। बिरहा का चेहरा आंसू से भीगा हुआ था, आंखों में बहुत रोने से लाली उतरी हुई थी। शामिर दो पल के लिए समझ नहीं पाया कि रोना शर्म हया का सबब है या कुछ और। अगर कुछ और तो उसने फौरन अपने दिमाग से झटक दिया। वो कुछ भी मिरहा के बारे में गलत नहीं सोचना चाहता था। मिरहा इसकी पहली मोहब्बत थी, मगर कुछ तो ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। बेशक मिरहा शामिर से 12 साल छोटी थी, मगर इसकी उम्र 22 साल थी, तो उसके ख्याल से ऐसी कोई कम उम्र नहीं थी जो उसे अपने रिश्ते की नजाकत का पता ना हो। वीर की जान, ये रोना किस लिए है? आपको खुद में समाना, आपको प्यार करना, आपको अपनी पनाहों में लेना मेरा हक है। मैं सिर्फ अपना एक जायज़ हक आपसे लेना चाहता हूँ, वो भी बड़ी मोहब्बत से। बहुत प्यार करता हूँ यार, इस तरह से रो रो कर मुझे मेरी ही नज़रों में शर्मिंदा कर रही हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? शामिर ने एक के बाद एक सवाल किया, जिसका मिरहा ने पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, बस सिसकियाँ ले लेकर रोई जा रही थी। कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, क्या मसला है, क्यों रो रही थी?
اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ماما اما مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ لفظوں کو توڑتے ہوئے بولی تھی، میری جان کیوں ڈر لگتا ہے؟ میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں، میرا تم سے بہت پیار کرتا ہوں میری جان، تمہارے ڈر کی وجہ مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کے اوپر سے ہٹتے ہوئے اس کے آدھے ادھورے بے لباس وجود کو بلینکٹ کے اندر کور کرتے ہوئے گہری نظروں سے اس کے ڈرے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ پولیس والے کی نظر تھی، دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی، اس کے دماغ کی نسیں گہری سوچ کی وجہ سے ابھرنے لگی تھی۔ رونا بند کرو، میں تم سے دور رہوں گا، کچھ نہیں کروں گا، پلیز رونا بند کر دو، آرام سے سو جاؤ۔ اس سے دور ہو کر لیٹ گیا تھا۔ اپنے ٹھاٹھے مارتے ہوئے جذباتوں کے سمندر کو اس نے بڑی مشکل سے بند لگایا تھا۔ وہ اپنے جذباتوں کے آگے ہار کر کبھی بھی اپنی بیوی کو اس کی مرضی کے خلاف جا کر اپنے قریب کرنے والے مردوں میں سے نہیں تھا۔ وہ حق میں محبت کا پابند شخص تھا۔ وہ حق کو حق سے نہیں، محبت سے وصول کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ مرہا بڑی محبت سے اس کا نام پکارا تھا۔ جی اپنے کانپتے ہوئے وجود کو سمیٹتے ہوئے بلینکٹ کے اندر سے بولی، اٹھ کر کپڑے چینج کر لو، اس طرح تم انکمفرٹیبل رہو گی۔ لہجے میں بے پناہ پیار تھا۔ شاہ میر کے محبت والے لہجے سے مرہا نے تھوڑی ہمت جمع کر کے اپنے چہرے سے بلینکٹ اتارا تھا۔ مرہا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ تم مجھ سے ڈر رہی ہو، تمہارے ڈر کی وجہ کیا ہے میں نہیں جانتا، مگر تم مجھ سے ڈر رہی ہو، مجھے شرمندگی ہے۔ شاید میرا رویہ غلط تھا، جس کی وجہ سے میری بیوی میری پناہوں میں خود کو محفوظ نہیں سمجھ سکی۔ میں اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں، تم آرام سے یہاں پر سو جاؤ، شاید امی کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ مرہا کو شاہ میر کا اس طرح روٹ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کہاں شاہ میر کو اس طرح ناراض کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے اندر کا ڈر نہ تو شاہ میر سے چھپا پا رہی تھی، نہ ہی بتا پا رہی تھی۔ شاہ میر اٹھ کر روم سے چلا گیا تھا۔ مرہا بیڈ پر پڑی اب تک سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی جو ہو گیا تھا۔ تو میں بھی آئیڈیاز امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو دیکھتے ہیں مرہا اور شاہ میر کی ویڈنگ نائٹ کمپلیٹ ہوتی ہے یا شاہ میر کو اسٹڈی روم میں ہی سونا پڑے گا؟ تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔